We've already learned, in the previous topics that when plant has to do I'm sorry, plant has to do photosynthesis. So using the light, they are making something that is the carbohydrate, right? But this photosynthesis has been divided into two parts, which we have understood. When you talk about this equation, right? When carbon dioxide is getting converted into carbohydrate, which is called as the dark reaction, and when this water gets converted into oxygen, called as the light reaction, right? So the photosynthesis is divided into two reaction. One is light reaction and dark reaction. Reaction means when there is need of the light is needed, sunlight is needed. Whereas dark reaction means light ho ya na ho, it is independent of light. So that process together, light reaction and dark reaction together, forms photosynthesis. सो लिखने के लिए तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर, बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेस, राइट? सो आउट ऑफ दैट हमने पहला प्रोसेस जिसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, उसके अंदर हमने समझा वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन. वन इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, राइट? हियर cyclic, when electron starts from one photosystem and comes back to it again. So the cyclic movement of electron is happening here. So it's called as cyclic photophosphorylation. But here the electron is moving, but it's not coming back to the start station. Okay, so that's non-cyclic photophosphorylation. So today we are going to deal with dark reaction. सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन. बेसिकली लाइट रिएक्शन में होता क्या है, थोड़ा सा एक और बारी हम लोग देख लेंगे. लाइट रिएक्शन में, और ये होता कहाँ पे, दिस होल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, थैलेकॉइड. इन सिंपल फॉर्म यू कैन रिमेंबर इट एज द क्लोरोप्लास्ट, सॉरी नॉट थैलेकॉइड, क्लोरोप्लास्ट, राइट? क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड ऐसे लगे हुए हैं, राइट? दे आर अरेंज लाइक दिस, थैलेकॉइड. तो थैलेकॉइड के लेयर पे जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन. अब उसमें होता क्या है, द लाइट रिएक्शन, इन दिस लाइट रिएक्शन लाइट एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन. मतलब पानी का ऑक्सीजन बनना इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन, रिमेंबर, ओके? Whereas when this carbon dioxide gets converted into carbohydrate, that's called as the dark reaction. Again, carbon dioxide gets converted into carbohydrate. This process is called dark reaction. अब ये याद रखो, इस प्रोसेस का पोजिशनिंग कहाँ पे क्या होता है. पहले देखो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, हमारे क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड के अंदर, ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर होता है, राइट? वेयर डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, ये जो द लिक्विड पार्ट, स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन. Now let's understand the dark reaction. This is the dark reaction. Very simple. Here, this reaction is divided into three parts. When you talk about the three parts, सबसे पहले है carboxylation, second reduction, third regeneration. Now, what happens in carboxylation? You have a substance RUBP, ribulose biphosphate, okay? In the presence of an enzyme, कोई भी रिएक्शन अगर एंजाइम के प्रेजेंस में होता है तो वो फास्टर होता है, राइट? सो यू हैव RUBP. Just a sec. So write down the question for the day. What is the question for the day? You have to explain dark reaction. So when you talk about explanation of dark reaction, this process is divided into three main steps. First is carboxylation, second is reduction, and the third is regeneration. ठीक है? तो अब सबसे पहले तो डार्क रिएक्शन शुरू करने से पहले यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिड दिस. इट वाज डन बाय कैल्विन. सो इस साइकिल को डार्क रिएक्शन के अलावा दूसरा नाम क्या दिया जाएगा, कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है. और कौन से एल्गे को यूज़ करके इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इट वाज डन बाय द हेल्प ऑफ क्लोरेला.
Okay, you can just sorry, go back. These are the points that you have to underline here. डार्क रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, राइट. एंड ये जो प्रोसेस है कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है. डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है. अब इस प्रोसेस को हमने 3 में डिवाइड किया था. कौन सा साइंटिस्ट था जिनको हु एक्चुअली वर्कड इन इट, इट वाज कैल्विन. ही वाज हेल्प्ड बाय बेंसन ऑल्सो. बेंसन उनके सबऑर्डिनेट्स थे, को वर्कर्स थे, यू कैन से. And the Nobel Prize was given to Calvin for this cycle, and this cycle is also called as Calvin cycle. इस टेक्निक में उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड था. नाउ यू हैव टू राइट डाउन द 3 मेन स्टेप्स. सबसे पहले carboxylation. So we'll see the carboxylation process here on the diagram. The starting of this reaction begins from here. Okay, 6, they have used the word RUBP, मतलब ribulose 1,5-biphosphate. Bi मतलब 2 phosphate group is attached, and where on the first carbon as well as the 5th carbon. Okay, 6 का मतलब ये है, इन्होंने यहाँ लिखा है 6 RUBP ना, तो 6 का मतलब है 6 molecule have been used for this reaction. 6 molecule has been used to form the reaction. एक नहीं 6, ठीक है. तो RUBP रिएक्ट करता है. RUBP क्या है, राइबुलोस 1,5-biphosphate, which combines with कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब जैसे ही पौधे हम लेंगे, अगर एक सेकेंड, हाँ, पत्तों के अंदर कौन एंट्री करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करता है, RUBP. RUBP एक्सेप्ट्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड. एंड कौन से एंजाइम के हेल्प से होता है ये पूरा प्रोसेस, रुबिस्को करके एक एंजाइम है जो हेल्प करता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में. ये 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड था. 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड था, हमारे पास बनता है एक अनस्टेबल कंपाउंड जिसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है. इट इज़ अनस्टेबल, राइट. इमीडिएटली द कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglycerate. What it forms? It forms 3-phosphoglycerate. So this process is called carboxylation. मतलब RUBP का कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करना और क्या बनाना, 3-phosphoglycerate बनाना. वंस अगेन, फर्स्ट स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन, 6 molecule of ribulose biphosphate combines with the carbon dioxide, जो कि स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर आता है. ये कंबाइन करता है तो बनता क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड बनता है विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को. ये अनस्टेबल कंपाउंड ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं है, इसीलिए जल्दी से वी गेट 3-phosphoglycerate. सो फॉर्मेशन ऑफ 3-phosphoglycerate यूजिंग RUBP, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन. पहला स्टेप क्लियर है, वेरी वेरी क्लियर. देन नेक्स्ट, अब जो 3-phosphoglycerate है वो ग्लिसरेट, इट मीन्स ग्लिसरिक एसिड. In chemistry, you have understood when acid gets converted into aldehyde, it is called reduction. Okay, so 3-phosphoglycerate changes into 3-phosphoglyceraldehyde. This process is called reduction reaction. So those steps is clear. I believe both the steps are clear. पहला क्या था, carboxylation, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड were accepted, change into glycerate. ग्लिसरेट जब aldehyde बन जाता है so that is reduction. अब ये जो एल्डिहाइड है इसके हेल्प से पौधा क्या करेगा, इट विल फॉर्म ग्लूकोज. इट इज़ वेरी सिंपल. दिस वी आर नॉट गोइंग टू डील राइट नाउ. दिस विल बी एक्सप्लेन वंस अगेन, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा समझ लो. 3-phosphoglyceraldehyde विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ठीक है, उसके अंदर फिर 2 फॉस्फेट का एडिशन होता है जिसका रिमूवल
एटीपी बनने के वजह से हो जाता है। पहले एक फॉस्फेट निकल जाता है, पहला कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो निकलता है तो एटीपी बनता है। अब क्यों निकलता है? हमें पौधों को चाहिए क्या? एटीपी चाहिए। दे नीड एनर्जी, राइट, फॉर डूइंग द प्रोसेस. So one a phosphate moves out in the form of ATP. Here again 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट है जो फिर से निकल के जाता है and we are left with glucose 6 phosphate and basically we should say glucose 6 phosphate. इस ATP के फॉर्मेशन के वजह से we are left with glucose. So basically होता क्या है? सबसे पहला प्रोसेस था कार्बोक्सिलेशन, राइट. डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन होता है. रिडक्शन के अंदर ही ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, ग्लूकोज. अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली यू राइट ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म्स ग्लूकोज, दैट्स इट. देन नेक्स्ट स्टेप इज रीजनरेशन. मतलब अब हमें ये जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है, शुरू किसने किया था ये प्रोसेस? RUBP ने शुरू किया था ना. तो अब हमारे पास है क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड है. इस ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमें RUBP बनाना है, तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन. इट्स वेरी सिंपल. ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर फॉस्फेट का जो एडिशन होता है उसका मूवमेंट, दैट मीन्स द शेप चेंजेस, देयर इज फिक्सेशन. जो कि 12 मॉलिक्यूल कंपाउंड था, फिर वो 5 कार्बन कंपाउंड बनता है, फिर 4 कार्बन, 7 कार्बन, 5 कार्बन. सो डोंट लर्न ऑल दिस, जस्ट अंडरस्टैंड ग्लिसरॉल्डिहाइड, phosphoglyceraldehyde, 3-phosphoglyceride gets converted into RUBP. This conversion of RUBP into RUBP is called regeneration. बस इतना सा लर्न कर लो, that's sufficient. लेकिन इसका इक्वेशन मालूम होना चाहिए आपको. डार्क रिएक्शन को कैसे लिखते हैं ये तो आपको मालूम पड़ गया. डार्क रिएक्शन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट बनना. कहाँ पे? स्ट्रोमा में. ठीक है. अगर आपका स्ट्रोमा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लीज़ मेक श्योर यू गो थ्रू द पिक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड लर्न वेयर इज स्ट्रोमा, वेयर इज थैलेकॉइड. सो ये पूरा रिएक्शन यू मस्ट बी लर्निंग. Carbohydrate gives rise to through carbon dioxide, okay, in the presence of chloroplast only. Then we have next is certain questions, okay. ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना. कैल्विन साइकिल क्या आपको मालूम है? डार्क रिएक्शन, यू नो व्हाट इट इज. Non-cyclic photophosphorization is not clearly given in the textbook, so you don't have to do it. Now next is photorespiration. जो आपके बुक में अच्छी तरह दिया है वही करना है. फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब पौधे रिस्पायर करते हैं. हम लोग रिस्पायर करते हैं, यस. सो व्हेन वी आर रिस्पायरिंग, व्हाट डू वी टेक इन? ऑक्सीजन. हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और क्या बाहर हम भेजते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो यही प्रोसेस पौधे भी करने लग जाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में. तो हम उसे फोटोसिंथेसिस नहीं बोलते. फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था? क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ले रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, राइट. लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा है पौधा, सो दैट इज़ डेंजरस, नो. अगर सारे पौधे ऑक्सीजन लेने लग जाएंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड देने लग जाएंगे, सो दैट्स अ डेंजरस प्रोसेस. दिस डेंजरस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन. ये होता क्यों है? लेट्स सी दैट. ये होता इसलिए है अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, ये लाइट बहुत तेज़ हो जाए, या ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, तब एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है. वेस्टफुल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पौधे जो हमें दे रहे हैं वो हमें किसी काम का नहीं है. कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड हमें किसी काम का नहीं है कि नहीं. वी वांट ऑक्सीजन. सो दिस इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस, जिसको एंजाइम कौन सा हेल्प करता है? रूबिस्को. हमने पहले जो प्रोसेस पढ़ा था उसके अंदर भी रूबिस्को काम कर रहा था, यहाँ पे भी रूबिस्को काम कर रहा है. बट रिमेंबर, रूबिस्को इज़ अ काइंड ऑफ डबल नेचर्ड स्ट्रक्चर, ओके. ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकता है, ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है. जो डार्क रिएक्शन में उसने क्या किया था? RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया था, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा है. तो रूबिस्को कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजर और इवन एज द रिड्यूसर. सो इट कैन वर्क इन बोथ द फॉर्म. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ विल यू राइट दिस फोटो रेस्पिरेशन? ये कौन से कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है.
So you can write it from here. What are the condition when photorespiration happens? Then these are the reaction. How it happens. सबसे पहले RUBP आता है. एक्सेप्ट किसको करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है. ठीक है. और यहाँ बनता है ग्लिसरेट की जगह यहाँ पे क्या बन रहा है? फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था ना डार्क रिएक्शन में, उसकी जगह यहाँ पे बना ग्लाइकोलेट. दिस ग्लाइकोलेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइऑक्सिलेट which enters. See, there is a big difference. डार्क रिएक्शन सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है, लेकिन ये फोटो रेस्पिरेशन के अंदर कितने ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व है देखो ज़रा. क्लोरोप्लास्ट भी इन्वॉल्व है, पेरोक्सिसोम भी इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रियन भी इन्वॉल्व है. माइटोकॉन्ड्रिया आई मीन टू से, राइट. सो 3 organelles are involved in it. So next question, how many organelles are involved in photorespiration? This you write it down. Okay.